Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss class 8 book Understanding Social Studies, and today we are going to discuss from geography chapter number 3 Natural Vegetation and Wildlife Resources. आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है. तो फर्स्टली वी हैव द इंट्रोडक्शन पार्ट. आइए देखते हैं. For millions of years, our Earth was merely a bare planet without any kind of life on it. Bare मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी. कहाँ पे? हमारे अर्थ पे. Scientists believe that life probably arose on the Earth about 3.5 million years ago. Life evolved in salty ocean water. और लाइफ कैसी थी? कहाँ पे? सबसे पहले salty ocean के अंदर. The first form of the life belonged to the plant kingdom. सबसे पहले लाइफ किसके फॉर्म में? प्लांट्स के फॉर्म में. It was plant kingdom that prepared the stage for the appearance of animal kingdom. किसके लिए था वो? Animal kingdom लिए. The animal depend entirely on plant for their survival. और उस टाइप के जो animals थे, they totally depend on the where? Plants for the survival, because they get the things from the plants. But animals are also useful to plants. और प्लांट्स के लिए भी एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दे कंप्लीट टू ईच अदर, यानी दोनों का बहुत एक अच्छा कोऑर्डिनेशन या कैसे लिंक था. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी. क्या है वो? एक प्लांट कम्युनिटी है यानी ग्रुप है विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम. यानी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है? वो वेजिटेशन जो खुद ब खुद बनती है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग ने उसके अंदर कोई भी अपना रोल नहीं पुट किया है. कल्टिवेटेड क्रॉप एंड फ्रूट्स ऑर्चिड फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. पर ये सब जो कल्टिवेटेड लैंड ये सब हमारा नेचुरल पार्ट नहीं, बिकॉज दे आर डन बाय द ह्यूमन बीइंग. द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, जगह की बात करें, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी प्लांट से रिलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड में फ्लोरा. द स्पीशीज ऑफ एनिमल आर रेफर्ड एज अ फौना. और उस सेम वैसी उसी आसपास की जगह को, एक जगह की बात करें जितनी एनिमल की स्पीशीज है उसको हम क्या बोलते हैं? फौना. फैक्टर इन्फ्लुएंस the natural vegetation and wildlife, means these are the factors which influence the natural vegetation and wildlife. All plants and animals depend greatly on their physical surrounding. जो भी plants होता है और animals होते हैं वो अपने आप कहीं नहीं होते, उनके लिए एक environment बहुत important होता है. यानी कि जो वहाँ का physical surrounding area है, it play a very important role for the formation of animals and the plants. And organisms environment must provide certain condition for it to survive. यानी कि there are certain condition जिसके survival के लिए जरूरी है क्या? एक environment. Conditions capable of supporting life occur on and near the surface on the earth is a thin region called biosphere. और जो जगह जो एक condition capable होती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर का मतलब है क्या? A place where living organisms are found. Following are the main factor that influence flora and fauna. एक कुछ factors होते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे फ्लोरा भी मिलेगा और fauna भी मिलेगा. पहला लैंड. The land affect the natural vegetation directly and indirectly. जो जमीन है, जो लैंड है, it play a very important role for the natural vegetation, right? Directly और indirectly भी. The nature of land influence the type of vegetation. जो nature है लैंड की वो किस पे डिपेंड करती है? उसके टाइप, वेजिटेशन के टाइप पे. The fertile level is generally devoted to agriculture. जो fertile land है वो किसके लिए बेस्ट होता है? एग्रीकल्चर के लिए. The undulating and rough terrain are area where grassland and woodland develop and give shelter to a variety of wildlife. वैसे undulating plain यानी अप्स एंड डाउन्स में होता है जो प्लेन ना हो. फिर रफ टेरेन यानी कि जो टेरेन यानी कि जो उसको पहाड़ टाइप को मैंने बराबर ना हो. एरिया हैव इन द ग्रासलैंड, उस पर क्या हो? ग्रासलैंड्स होते हैं. तो वो जगह किसके लिए फेमस है? वो होते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या स्पीशीज, यानी दोनों के लिए, एनिमल्स के लिए भी और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए भी. नेक्स्ट, सॉइल. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. अब वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है सॉइल पे. जैसे हर जगह पे हर तरीके प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उसी किसके लिए डिपेंड होता है? सॉइल के लिए. द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट्स कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. कुछ ऐसी जगह है सैंडी सॉइल जहाँ पे कैक्टस या फिर आप थॉर्नी बुशेस यानी जिसमें नुकीले चीज़ें होते हैं वो मिलेंगे वहाँ पे. फिर वेट और मार्शी मतलब जो दलदला गीला जगह, और डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन. मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी होता है तो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट वहाँ पे होता है. मैनग्रोव मतलब जो पेड़ की जड़ें हमेशा पानी में रहती है, दे आर कॉल्ड द मैनग्रोव्स. ठीक है. डेल्टिक वेजिटेशन जहाँ पे डेल्टा होता है यानी जहाँ पे पानी जाके इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे डेल्टिक होता है. द हिल स्लोप
विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव बीन कोनिकल फॉरेस्ट, और जहाँ पे हिल होती है तो वहाँ पे कोनिकल यानी कि इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड द सॉइल। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लोरा एंड फौना। क्यों? क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी, ठीक है, कोल्ड, प्रेसिपिटेशन, सॉइल सब डिपेंड होती है, राइट। On the slope of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meter, the fall in the temperature affect the type of vegetation. अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम होता जाता है, तो इसलिए वहाँ की वेजिटेशन में डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। Its growth and change it from tropical to subtropical temperature and alpine vegetation. तो वहाँ पे alpine होता है, conical होता है, राइट। तो ऐसी जगह जहाँ पे ठंडा होता है। Sunlight. The variation in the duration of sunlight at a different places is due to differences in latitude, altitude, season, duration of day. तो जो सनलाइट होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अर्थ एक जगह पे नहीं स्थित है, वो मूव करती है, फिर थोड़ी टिल्टेड है, इसीलिए क्या लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन, इन सब की वजह से सनलाइट का जो फोकस होता है हर जगह पे अलग अलग होता है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। अब समर में जो ग्रोथ होती है वो तेज होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट उनको प्रॉपरली मिलती है। प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन, स्नो, ये सब होता है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। अगर हम बात करें मैक्सिमम जो भारत में बारिश होती है वो कब होती है? एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। कब होता है? जून टू सितंबर। नेक्स्ट कौन सा है? रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी जब वापस आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून तब भी बारिश होती है। एरिया ऑफ द हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन। जिस जगह पे पानी ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगी, वहां पे क्या डेंस वेजिटेशन मिलता है, घना जंगल, एज कम्पेयर टू द अदर एरिया ऑफ द लेस रेनफॉल। जहां पे कम होगा रेनफॉल वहां पे कम होगा फॉरेस्ट। इकोसिस्टम, द नेचर ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। तो जो एनिमल्स की लाइफ होती है उससे वो डिटरमाइन करते हैं। यानी क्या कि किसी भी जगह पे प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जितना अच्छा वहाँ पे फॉरेस्ट होगा उतने अच्छे वहाँ पे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। When the vegetation is altered, the animal life is also change. अगर वहाँ पे वेजिटेशन कम होने लगेगा तो जो एनिमल्स की लाइफ है वो भी चेंज होने लग जाएगी। All the plants and animal in an area are interdependent. और जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं totally interdependent to each other and territorial to each other in their physical environment, thus forming ecosystem. तो इसलिए इकोसिस्टम के लिए both are responsible. इकोसिस्टम अच्छा रहेगा कब? जब वेजिटेशन अच्छी होगी, जो वहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। ह्यूमन बींग आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। देखो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। भाई कहीं पे प्लांट लगाना है, कहीं काट है, कुछ कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अ लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड द बायोम। अब एक जो लार्ज एरिया इकोसिस्टम का अलग अलग टाइप के वहाँ वेजिटेशन है, एनिमल लाइफ मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। द बायोम्स आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। अब जो बायोम है कैसे आइडेंटिफाई होता है? बेसिस ऑफ द प्लांट्स। इंपॉर्टेंट लैंड बायोम इंक्लूड टुंड्रा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब, सवानास, डेजर्ट। तो ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ क्या है? ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जिसकी वजह से उस जगह का नाम भी थोड़ा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेजिटेशन। द मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑन द अर्थ मे बी ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड इज गवर्न बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे है? मॉइस्चर के ऊपर। फॉरेस्ट are found in humid climate, grasses are found in region of moderate precipitation and shrubs are grown in a dry region. तो यानी कि जंगल कहाँ पे होंगे? जहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, यानी गर्मी भी ज़्यादा होगी, बारिश भी फिर वहाँ ज़्यादा होगी। फिर ग्रासेस यानी कि जो घास हमें कहाँ मिलेंगी? जहाँ पे मॉडरेट सा टेम्परेचर होगा, राइट, यार हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी वहाँ पे। फिर श्रब्स यानी कि हम बात करें कैक्टस और इबोने की, तो वो कहाँ पे होते हैं? वो ड्राई रीजन में होते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? वेजिटेशन की। आइए सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट इज एन एरिया विद अ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। मतलब वो जगह जहाँ पे हाई डेंसिटी मतलब बहुत सारे पेड़ एक साथ मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। अ फॉरेस्ट इज यूजुअली एन एरिया फिल्ड विद ट्रीज। वहाँ पे क्या होंगे? पेड़ होंगे। बट एनी टॉल डेंसी पैक्ड एरिया ऑफ द वेजिटेशन मे बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? हम फॉरेस्ट बोलते हैं। मतलब बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत सारे वहाँ पे एक तरीके के वहाँ पे तो देखो पेड़ नहीं मिलेंगे, अलग तरीके के पेड़ मिलेंगे, पर बहुत डेंसी होते हैं। फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली 9.4% ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो फॉरेस्ट में कितना? 9.4% है अर्थ सरफेस का।
दे फंक्शन एज हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म एंड कंजर्व द सॉइल। वो क्या है, दे एक्ट एज अ हैबिटेट्स। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज एंड टू डिफरेंट डिग्री ऑफ स्पेसिसिटी, मतलब अलग अलग है, ठीक। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो उन्होंने फॉरेस्ट को भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला टाइप कौन सा है, एवरग्रीन, यानी जहाँ पे हमेशा ऐसा लगता है कि पत्ते उनके झड़ते नहीं है, पर झड़ते हैं पर पता नहीं चलता। डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो एक टाइम बाद क्या होते हैं, अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्रीज दैट रिटेन ग्रीन फॉइलेज ऑल ओवर द अराउंड। मतलब ऐसा होता है कि जो उस वहाँ पे बहुत अलग तरीके के पेड़ होते हैं पर उनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, इसलिए पता नहीं चलता किसके पत्ते गिरे किसके नहीं गिरे। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड टू 4 ग्रुप्स। इसको भी किसमें पार्ट में, 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर यूजुअली फाउंड इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल एंड अबंडेंट सनशाइन। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, वहाँ पे धूप भी बहुत ज्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे धूप अच्छी होती है, यानी समर में धूप अच्छी होती है, तो वहाँ पे ट्री बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं। दीज फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ हार्डवुड स्पीशीज। वहाँ पे जो वुड है वो हार्ड होती है, क्योंकि हार्ड होगी तभी तो रह पाएगी, वरना तो गल जाएगी। एंड एवरग्रीन, हमेशा क्या उसमें पत्ते लगे रहते हैं। The canopy trees species are mostly tall hardwoods with broad leaves that release large quantities of water throughout the transpiration. तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं। Some of the trees found in a tropical forest are rosewood. तो कुछ के नाम बताएं, क्या, रोजवुड हो गया, महागोनी हो गया और इबोनी, ये सब एग्जाम्पल है किसके, एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। बिकॉज ऑफ डेंसी फॉलेज कंपीटिंग फॉर लाइट, लिटिल डायरेक्ट सनलाइट रीचिंग देयर अंडर स्टोरी। मतलब इतना डेंस फॉरेस्ट होता है कि नीचे तक उसकी जो सनलाइट है वो आ ही नहीं पाती। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेजन बेसिन। कहाँ पे मिलता है वो, अमेजन बेसिन में। फिर जेरी बेसिन, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड न्यू गुआना। तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जहाँ पे जो एकदम डेंसी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर मिक्सड वेराइटी, मतलब यहाँ पे एक ही तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग तरीके के वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज लाइक ओक, पाइन, इकोलिप्टस, बैम्बू, मलबरी एंड वॉलनट, ये सारे ट्रीज वहां पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी है, उस सी के आसपास के जितनी कंट्रीज के जो कंट्रीज हैं उनके अंदर में जैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, उसमें यहाँ पे तो क्या नाम दे दिया, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। सच एज स्पेन, इटली, साउथ फ्रांस, ग्रीस, पोर्चुगल, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली एंड साउथ अफ्रीका, राइट। Here the summers are dry, यहाँ पे समर क्या है, ड्राई है, and rains in winter, तो उस टाइम विंटर में क्या होते हैं, रेन होते हैं। Plants largely grow in winter, अब ग्रो होते हैं, and they have to be protected from the severity of heating during the summer, उन्हें बचाना पड़ता है। The trees are not thick नहीं होते, मोटे नहीं होते, क्योंकि सिंपल सी बात है, समर्स में तो ग्रो नहीं हो रहे, विंटर में हो रहे हैं। And have broaded leaves, और उनके पत्ते बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। Some of these species are oak, pine, fir, सिदार एंड ओलिव। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ट्रीज हैं जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में मिलते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज आर कॉनिफेरस, यानी कोन टाइप उनका स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऐसे ऐसे। एंड एवरग्रीन, और क्या होते हैं, ये भी एवरग्रीन होते हैं। दे कंसिस्ट चीफली ऑफ कॉनिफेरस, इनको क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस, सच एज पाइन, फर, स्प्राउस एंड अदर एवरग्रीन ट्रीज दैट बियर कोन हैव निडल लाइक लीव्स। उनकी पत्ते कैसे, सुई की तरह होती है। These forests extend as a continuous belt around the North Pole region। ये किधर है, नॉर्थ पोल रीजन में, बहुत एक कंटिन्यूस सीरीज के अंदर में। एंड हाई माउंटेन इन यूरोप, और कहाँ, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे ऐसे ट्रीज देखने को मिलते हैं। दी पॉइंटी एंड ट्रायंगुलर शेप ऑफ दीज ट्रीज हेल्प देम टू शेड देयर हैवी स्नो। अब ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि इस पे मान लो स्नो पड़ी, बर्फ पड़ी, अब ये क्लोनिकल शेप में बर्फ नीचे गिर गई, तो ऐसे इसलिए यहाँ जो ट्रीज उनकी शेप ऐसी होती है। The softwood from the coniferous forest is used in the construction of home, farm buildings, containers, toys and many other items। अब यही जो trees होते हैं इनको यूज कर सकते हैं ये सारे आइटम्स को बनाने में। नेक्स्ट इज द डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है, डेसिडियस मीन्स फॉलिंग ऑफ एट अ मेच्योरिटी, मतलब जब पत्ते आपने देखा होगा, जब पत्ते एकदम पीले हो जाते हैं या वीक्स हो जाते हैं, वो अपने आप झड़ जाते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड इज टिपिकली यूज इन रेफरेंस टू ट्रीज और श्रब्स दैट लॉस्ट देयर लीव्स सीजनली, और जो लीव्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में वो अपनी जो टहनियाँ होती है उसको छोड़ देती हैं। Deciduous plants including trees, shrubs and hibiscus are those that lose all the leaves a part of the year। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है एक साल में कि वो अपने लीव्स को छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्सिशन, राइट, मतलब एक टाइम के बाद वो अपने लीव्स को छोड़ देते हैं। Deciduous forests are divided into 2 groups, tropical and temperate, राइट, इसको भी पढ़ते हैं।
फर्स्ट आ जाइए, कौन सा है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, आर फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे मेजर कंट्रीज के अंदर में क्या देखते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। मेन स्पीशीज इंक्लूड साल, देवदार, रोजवुड, बैम्बू, सैंडलवुड, अकेशिया एंड इकोलिप्टस। तो ये बेसिकली ट्रीज वहां पे मिलते हैं। टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय ट्रीज दैट लूज देयर लीव्स ईच ईयर। हर साल वो क्या करते हैं? अपने लीव्स को छोड़ देते हैं। दे आर फाउंड इन एरिया वेयर वार्म, क्या कंडीशन कहाँ मिलते हैं? वार्म हो, मॉइस्ट समर हो, ऑल्टरनेट विथ मिल्ड विंटर, और उसके साथ साथ वहां पे हल्की हल्की ठंड भी पड़े। द थ्री मेजर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट टाइप अकर्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ऐसे जगह जहाँ पे मिलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर कौन कौन से? ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया एंड यूरोप। ये तीन जगह है जहाँ पे आपको टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। स्मॉलर एरिया अकर्स इन सदर्न साउथ अमेरिका। स्पीशीज ऑफ द टिपिकल ट्रीज इंक्लूड ओक, मैपल, बीच एंड एलम। तो ये सारे वहां पे मिलते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अब देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट उससे जनरेट होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज आर लंबर, मतलब भाई लकड़ी को काटना, एंड वुड पल्प, वुड के जो ऊपर का पल्प होता है उसको यूज करना। इन सॉ मिल लॉग्स आर कट इनटू टिम्बर दैट इज यूज्ड इन बिल्डिंग, यानी कि लकड़ी को काट दिया, ठीक है, क्यों? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फार्मिंग बिल्डिंग्स यानी फार्म हाउस बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए एंड अदर स्ट्रक्चर। तो इसके लिए क्या यूज होता है? लकड़ी यूज होती है। स्मॉलर लॉग्स आर यूज्ड एज फायरवुड फॉर फोर्स पोस्टर एंड माइन ट्रैप्स। तो ये जो छोटी छोटी लकड़ी होती हैं उसको इस फॉर्म में यूज होती है। द पार्ट ऑफ लेफ्ट ओवर लॉग्स फ्रॉम सॉ मिल्स आर यूज टू मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स। तो जो बच जाता है उसको बड़े अलग अलग चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन डिस्टिलेशन प्लांट्स द वुड इज प्रोसेस्ड टू यील्ड एसिटिक एसिड, यूज करते हैं एसीटोन, रेजिन, चारकोल एंड मिथेनॉल। तो इन जो लकड़ियों को इसलिए भी यूज किया जाता है। इन हाइड्रोलिसिस प्लांट द वुड इज ट्रीटेड टू यील्ड इथेनॉल, अल्कोहल, ग्लिसरीन एक्सेट्रा। तो ट्रीज को इसके लिए भी यूज किया जाता है। द बार्क ऑफ सम ट्रीज यील्ड ड्रग्स, जो बार्क होती है यानी जो ऊपर की छाल होती है पेड़ों की, उससे ड्रग्स यानी कुछ मेडिसिन को बनाया जाता है। डाइज मतलब कलर्स एंड सब्सटेंस यूज इन मेकिंग एडविसिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज कर जाती हैं इस पेड़ों से, कैसे बनाया जाता है। द सैप एंड गम ऑफ द अदर ट्रीज आर द सोर्स ऑफ ब्रीच, बियर, रेसिन एंड टर्पेंटाइन। तो ये सब एक सोर्स है किसका? ट्रीज का, जिसके थ्रू ये सब चीज़ों को बनाया जाता है। ग्रासलैंड्स, नेक्स्ट वी हैव द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड आर ओपन एरिया, पूरा खुला होता है। वेयर ग्रासेस आर द मोस्ट प्लेंटीफुल प्लांट्स, मतलब वहां पे घास ही बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जस्ट लाइक अ प्लांट्स। हियर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड, दो टाइप के यहाँ पे ग्रासलैंड है। पहला कौन सा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और कौन सा है नेक्स्ट? कौन सा है? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखते हैं। दे आर ऑफन नोन एज द सवाना ग्रासलैंड इन अफ्रीका। तो कहाँ पे है ये? अफ्रीका में। तो क्या बोलते हैं उसको? सवाना ग्रासलैंड। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, ब्राजील हाईलैंड्स, पराग्वे, अर्जेंटीना, सुडान, कीनिया, घाना, तंजानिया। तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। हियर टेम्परेचर रिमेन हाई एंड रेनफॉल इज वेरिएबल फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ना ज़्यादा बारिश कम है और ना बहुत ज़्यादा है। सॉइल आर यूजुअली वेरी थिन, ठीक है, सपोर्टिंग ओनली ग्रासेस। सॉइल बहुत ज़्यादा कमजोर होती है। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे बारिश होगी नहीं तो सॉइल वैसे कमजोर होगी, राइट? तो इसलिए वहाँ पे क्या? खाली ग्रासेस होती है। एंड फ्लोइंग प्लांट्स, जो मतलब चलते फिरते रहते हैं। विद ओनली स्कैटर्ड ट्रीज एंड शब। और देखो पेड़ देखो स्कैटर्ड होगा पूरा, मतलब पूरा ऐसा नहीं होगा जहाँ पे बहुत सारे लीव्स होंगे, नहीं, ठीक है। In many areas, the grassland have been burned to maintain a healthy grass crop for grazing animal. कई जगह क्या करते हैं कि जो यहाँ पे grassland को क्या बर्न कर देते हैं, right? Understood? Next क्या है? Temperate grassland. तो temperate grassland are found in southern part of Canada. कहाँ मिलता है वो? southern part of Canada में, सेंट्रल USA, अर्जेंटीना, सेंट्रल रशिया एंड सदर्न अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये रीजन है जहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। दे आर गिवन लोकल नेम सच एज प्रेरीज। क्या बोला गया उसको? प्रेरीज बोला गया। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। फिर स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ पर है? रशिया में। पेम्पास कहाँ है? अर्जेंटीना में।
डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और वील्ड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट नाम है किसके? ग्रासेस के। हेयर शॉर्ट ग्रास ग्रो विद स्कैटर्ड ट्रीज, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है? घास होती है, और वहाँ पेड़ वो फैले हुए होते हैं पेड़। टेम्परेट ग्रासलैंड हैव लेस रेनफॉल देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम विंटर टू समर देन सवाना। अंडरस्टूड? तो यानी टेम्परेट ग्रास कैसे? वहाँ पे लेस रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहाँ पे जो रेंज है विंटर्स में वो ज़्यादा होती है इन समर, यानी कि यहाँ पे विंटर बहुत बड़ी होती है समर्स के कंपैरिजन में। सो शॉर्ट विद स्कैटर्ड ट्रीज ग्रो इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड, तो यहाँ पे जो ट्री होते हैं वो स्कैटर्ड नहीं फैले हुए होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत पास में टहनियाँ बहुत बड़े बड़े लीव्स, ऐसा नहीं होता। डेजर्ट वेजिटेशन, डेजर्ट भी क्या है? एक टाइप का वेजिटेशन है। अ डेजर्ट इज अ रीजन दैट रिसीव एन एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये नहीं कि अगर हम बात करें खाली मतलब जो ड्राई डेजर्ट की, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट की भी बात होती है। लेस देन इनफ टू सपोर्ट ग्रोथ मोस्ट ऑफ द प्लांट। मोस्ट डेजर्ट हैव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ लेस देन 400 मिलीमीटर, यानी 400 मिलीमीटर से भी कम यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ पे? डेजर्ट में। डेजर्ट आर समटाइम क्लासिफाइड एज अ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, तो दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया। कोल्ड डेजर्ट कैन बी कवर्ड इन अ स्नो और आइस। किससे कोल्ड है? कोल्ड मतलब ठंडा ही होगा, तो उसे किससे कवर होता है? स्नो से या आइस कैप से। फ्रोजन वाटर अनअवेलेबल टू प्लांट लाइफ, तो एकदम पानी जमा होता है जिसकी वजह से प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते। दे आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अ टुंड्रा, उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा। इफ द टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट सीजन इज अबव द फ्रीजिंग टेम्परेचर, बहुत कम होता है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर है। और एज एन आइस कैप इफ द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग एट द राउंड, आइस कैप कब बोलेंगे? जब हमेशा वहाँ पे क्या होगा? फ्रीज होगा। द हॉट डेजर्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। हॉट डेजर्ट कब मिलता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जगह पे। दे इंक्लूड सहारा, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बड़ा सबसे बड़ा कौन सा? सहारा। फिर कौन सा है? कालाहारी डेजर्ट, कहाँ मिलता है? अफ्रीका में। अटाकामा डेजर्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका में। फिर कौन सा है? सोनोरन डेजर्ट, कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। अदर हॉट डेजर्ट आर इंडियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये भी क्या है? ये सब एग्जाम्पल किसके? हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल है। द कोल्ड डेजर्ट आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन इन इंटीरियर ऑफ द एशिया, यानी कोल्ड डेजर्ट भी मिलते हैं कहाँ पे? एशिया में, साउथ अमेरिका में। दे आर, उसमें से कुछ एग्जाम्पल क्या है? गोबी डेजर्ट एंड द तिब्बतन डेजर्ट इन एशिया, पेंटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? कोल्ड वाले के। हॉट डेजर्ट वेजिटेशन इंक्लूड श्रब्स, prickly pears, desert holly and the brittle bush। दे जैसे एग्जाम्पल देखो, ये सब क्या है? जहाँ पे ये वाला कलर है लाइट पिंक, तो वो क्या है? वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन है, मतलब एकदम फ्रीज होता है। ये देख रहे हो आप पूरा का पूरा यहाँ पे, राइट। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है हमारे, अगर हम बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे कौन सा है? आर्कटिक ओशन। यहाँ पे कौन सा है? अंटार्कटिका है। तो ये सारा का सारा फ्रोजन है, यहाँ पे मतलब एकदम बर्फ हमेशा रहती है। तो ये कौन सा? टुंड्रा वेजिटेशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग कलर हो गया। तो ये सारे क्या है? प्रेरीज हो गया। ये क्या? ग्रासलैंड टाइप है, राइट। जहाँ जहाँ पे ऐसे होगा ये क्या है? यहाँ पे ग्रासलैंड है। तो कौन सा हो गया? ये प्रेरीज हो गया। तो इस टाइप के वेजिटेशन हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, और अलग अलग तरीके के वेजिटेशन भी देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ऑल आर जीरो, मतलब जहाँ पे भी हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब सीधे सिंपल सी बात है, जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा उसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। इन एडिशन डेजर्ट प्लांट मिनिमाइज वाटर लॉस विथ थिक वैक्स कोटेड ऑन देयर लीव्स। तो जो डेजर्ट में होते हैं वो उनकी जो टहनियाँ होती हैं, या आप कह सकते हो जो उनकी वो थिक होती है, मोटी होती है, उसमें क्या होता है? वैक्स लगा होता है। वैक्स से क्या होता है? लीव्स के जब बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो पानी इवेपोरेट नहीं होता है, राइट। सम स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, तो वो जो इतना मोटा होता है वैक्स की वजह से उसके अंदर पानी स्टोर रह जाता है। रूट्स एंड स्टेम्स, अदर डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग टैप रूट्स दैट पेनिट्रेट टू द वाटर टेबल। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ पेड़ होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है, ताकि वो क्यों नीचे होती है? ताकि वो वाटर वो कंज्यूम कर सके। कैक्टी आर ऑफन थॉट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, तो कैक्टी यानी कैक्टस जो होता है वो एक डेजर्ट प्लांट है, क्योंकि वो उसी एरिया में ही रह सकता है। दे इंक्लूड द पी एंड सनफ्लावर फैमिलीज, तो उसी फैमिली से आता है। नो अदर वेजिटेशन ग्रो हेयर, उसके अलावा कोई वहाँ पे वेजिटेशन होती नहीं है। कोल्ड डेजर्ट हैव ग्रासेस एंड श्रब्स एज डोमिनेट वेजिटेशन, कोल्ड डेजर्ट में थोड़ी बहुत ग्रासेस और श्रब्स वहाँ पे हो जाते हैं ग्रो। नेक्स्ट वी हैव द टुंड्रा वेजिटेशन, राइट। स्टार्ट करते हैं। इन फिजिकल ज्योग्राफी टुंड्रा इज अ बायोम, भाई जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा भाई बायोम है, तभी वहाँ पे क्या लाइफ पॉसिबल है। वेयर द ट्री ग्रोथ इन हिंड्रेड बाय लो टेम्परेचर, ट्री ग्रोथ है वहाँ पे क्या हो? टेम्परेचर लो होगा। एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, मतलब कि जो सीजन होते हैं मतलब गर्मी वहाँ पे थोड़ी सी कमी होगी। देयर आर 3 टाइप ऑफ टुंड्राज,
आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा। तो ये 3 तरीके के इन्होंने वेजिटेशन वहाँ पे दिए हैं। इन टुंड्रा द वेजिटेशन इज कंपोज ऑफ ड्वार्फ श्रब्स, वहाँ पे जो श्रब्स यानी जो भी पेड़ पौधे वो जो बहुत छोटे छोटे होंगे, सेजेस, ग्रासेस, मोसेस एंड लाइकेंस। तो ये बहुत कम और बहुत छोटे, बहुत कम मात्रा में होते हैं। स्कैटर्ड ट्रीज ग्रो इन सम टुंड्रा, और जो ट्रीज होते हैं वो भी स्कैटर्ड फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया में बहुत सारे वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया में कौन सा वेजिटेशन देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे पता ही चल रहा है रेन फॉरेस्ट मतलब रेन वहाँ पे ज़्यादा होती होगी। These forests are restricted to heavy rainfall area of the Western Ghat and the island group of Lakshadweep, अंडमान एंड निकोबार, पार्ट ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। यानी ये वो फॉरेस्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कौन से? इंडिया के वेस्टर्न घाट में मिलेगा। आइलैंड कौन कौन से? लक्षद्वीप हो गया, फिर अंडमान निकोबार हो गया, और बंगाल का पार्ट हो गया, और आसाम हो गया। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। द ट्री रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और अबव। अब यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। These forests appear green all over the area because they are called the evergreen forest। और वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमें पता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो क्या है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। सम ऑफ द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिकोना। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे ट्रीज हैं जो उस टाइम पे ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ इंडिया में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ मानसून फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम किस चीज़ पर डिपेंड होता है? ये मानसून पे होता है। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। तो ये जो फॉरेस्ट है, कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें कितनी बारिश होती है? 200 से 70 सेंटीमीटर तक। ट्रीज of these forests shed their leaves for about 6 to 8 week in a dry summer। तो जब समर्स ड्राई होती है, सूखी जब हवा चलती है, तब 6 से 8 वीक तक इनके पे पत्ते नहीं होते पेड़ों पे। These forests are found mostly in the eastern part। कहाँ पे मिलते हैं? ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, along with the foothills of the हिमालय, मतलब जो हिमालय के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो उसमें से जब फॉरेस्ट की बात करें तो टीक सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्लांट या ट्री है। और क्या? बैम्बो है, साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, खेर हो गया, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये बहुत सारी स्पीशीज वहाँ देखने को, प्लांट्स के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द थ्रॉन फॉरेस्ट। जैसे पता चला नाम से, ये क्या? डेजर्ट वाले होंगे। इन दिस रीजन लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे क्या है? जो रेनफॉल होगा वो 70 सेंटीमीटर से कम होगा। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्निक ट्रीज एंड बुशेज। तो वहाँ पे थॉर्निक बुशेज और ट्रीज होंगे। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वो मिलता है जहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत डेजर्ट होता है, इंक्लूडिंग सेमी एरिड रीजन। कौन सा? गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ये वो है जहाँ पे थोड़ी बारिश कम होती है। अकेशिया, पाम्स, यूफोबिया एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे ये सारे प्लांट देखने को मिलते हैं मोस्टली। ट्रीज आर स्कैटर्ड, जो पेड़ होंगे वो फैले हुए होंगे। हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटेड डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। और जो उनकी जड़ें होती हैं, इनकी रूट्स होती हैं, बहुत नीचे तक होती हैं ताकि इनको जमीन से कुछ मॉइस्चर मिल सके। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेन रीजन द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो मतलब यहाँ पे एल्टीट्यूड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिटवीन 1000 टू 2000 मीटर हाइट, इनकी हाइट देख रहे हो आप, 1000 से 2000 मीटर की हाइट होती है। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज सच एज ओक, और वहाँ पे कौन सा? ओक मिलेगा, चेस्टनट मिलेगा, ये वहाँ पे मेन कॉमनली वहाँ पे ट्रीज देखने को मिलते हैं। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर हाइट, और ऊपर की बात हो रही है, टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फायर, स्प्रूस एंड सीदार आर फाउंड। मतलब यहाँ पे भी कोनिकल शेप के फॉरेस्ट, कॉनिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे इतना हाइट पे ही होता है वो, और वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो बर्फ यहाँ से हट सके। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली विद द साउथ पोल ऑफ द हिमालय। और इंडिया में कहाँ प्रेजेंट है वो? हिमालय रीजन में। प्लेस हैविंग द हाई एल्टीट्यूड, वो कहाँ पे? एल्टीट्यूड वहाँ का बहुत ज़्यादा हाई है। इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन, ब्रेचेस आर कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट।
दे कवर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम बात करें स्टेट, कौन से स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो दीज आर द स्टेट जहां पे आपको इस टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड, मतलब ये वहां मिलेगा कोस्ट के किनारे। मैंने बताया था अभी कि मैंग्रोव वो प्लांट्स होते हैं या वो एरिया होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो हमेशा कहाँ होती है, पानी के अंदर होती है। तो कहाँ मिलेंगे, हमेशा कोस्ट पे मिलेंगे, और जहाँ पे टाइड्स आते हैं। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, वहाँ पे क्या मड और सिल्ट, रेत वहाँ पे रहता है उसके आसपास। डेंस मैंग्रोव आर कॉमन वेराइटी विद रूट ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज अंडर द वाटर, हमेशा उसकी जड़ें कहाँ होंगी, नीचे होगी, कहाँ, पानी में। द डेल्टास ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो ये वो सब रिवर है जहां पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, ये सब मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट ऑन प्रीवियसली क्लियर लैंड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, मतलब हमें क्या करना है, जिस जगह पे पहले पेड़ थे फिर लोगों ने उसको काट दिया, हमें वापस क्या करना है, उसे फॉरेस्ट को वो कवर करना है। मैसिव रिफॉरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड सुटेबल ट्रीज, वहां पे सुटेबल ट्रीज लगाए ताकि हम उस एरिया को जल्दी जल्दी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सके। फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज शुड बी बैन, जो फॉरेस्ट को लोग काटते हैं उसको बैन करना चाहिए। एवरी पीस ऑफ बेयर लैंड शुड बी प्लांटेड विद ट्रीज, जो भी खाली पड़ा हुआ लैंड है हमें वहां पे सब पे क्या करना है, पेड़ों को लगाना है। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर, फॉरेस्ट को हमें बचाना चाहिए आग लगने से। कभी कभार होते हैं हवा चलती तेज, जो अपन ट्री रगड़ते हैं फिर फायर होता है, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। सूखी जो घास है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी चेक्ड, जो एनिमल्स ग्रेज करते हैं हमें चेक करना चाहिए, यानी कि सारे सारे फॉरेस्ट को वो साफ कर दे, खा गए। नर्सरी शुड बी एस्टेब्लिश फॉर द फॉरेस्ट ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, नर्सरी बनाओ, मतलब कि पेड़ों को लगाने के लिए छोटी छोटी नर्सरी लगाएं ताकि वहां से लोग अपने पेड़ों को इकट्ठा करें और वहां पे लेके जाएं और पेड़ लगाएं। फॉरेस्ट लैंड शुड बी नॉट यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, जो एक लैंड है, जो जमीन है, जो फॉरेस्ट के लिए, उसको कभी भी एग्रीकल्चर के लिए यूज ना करें। नेक्स्ट, इफ felling of trees become essential for the every single tree cut, 2 trees should be planted in a planned manner। अगर सपोज दैट लग रहा है कि हमें नीड है पेड़ों की, होती भी है, तो जब हम अगर एक पेड़ को काट रहे हैं तो कम से कम 2 पेड़ों को लगाने का वहां पे प्लान करें। नेक्स्ट, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑन देयर लाइफ थ्रू पब्लिसिटी, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा, मतलब हमें लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे हम उनको बचा सकते हैं, किसके थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, राइट। वाइल्ड लाइफ क्या है, वो एनिमल्स जिसको हम अपने पास नहीं पाल सकते, रख सकते, उन्हें क्या वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम, और वाइल्ड लाइफ हमें हर जगह इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। डेजर्ट, फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड ग्रासलैंड्स ऑल हैव डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ, हर जगह हमें अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ चीजें देखने को मिलती है। All the living organisms in an ecosystem are interlinked and they are part of the food chain। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी एक जगह की हम बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कुछ भी, तो हर एक एनिमल दूसरे से इंटरलिंक्ड है, प्लांट से भी लिंक्ड है, तो हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, एक फूड चेन का पार्ट है। अफ्रीका, डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, स्वैम्प एंड ग्रासलैंड आर आइडल होम फॉर द ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल। अब डेंस इक्वेटोरियल मतलब वहां पे बहुत ज्यादा डेंसी फॉरेस्ट है, जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं वहां पे एनिमल्स भी ज्यादा देखने को हमें मिलेगा, इसलिए अफ्रीका की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पे देखने को एनिमल्स मिलते हैं। एलिफेंट, वाटर बफेलोज, monkeys, hippopotamus, pythons and rhinoceros roam the equatorial forest area and swampy land है। तो जो इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं और जो ये सब है, इनके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए और वहाँ पानी भी चाहिए, तो ये उस एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्टैग, डियर, जेब्रा एंड जिराफ आर द हर्बीवोरस फाउंड इन ग्रासलैंड। अब जितने एनिमल्स, ये सब एनिमल्स क्या हो गए, हर्बीवोर, मतलब जो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स और प्लांट्स पे, तो बेसिकली ग्रास लैंड में रहेंगे। नेक्स्ट, लायन, चीता, लेपर्ड, हाइनास एंड वाइल्ड डॉग्स आर सम ऑफ द कॉमन कार्निवोरस फाउंड हियर। और वहीं पे क्या है, कार्निवोरस भी हैं। भाई देखो, जहाँ पे हर्बीवोरस होगा वहाँ पे कार्निवोरस भी होगा, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होगी या जो जितने नंबर्स में अगर हर्बीवोरस खाली रहे तो वो तो सारे जंगल खा के साफ कर देंगे, तो इसलिए कार्निवोरस भी इंपॉर्टेंट होते हैं इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए, जो ये दे आर द पार्ट ऑफ फूड चेन। कैमल्स एंड ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन डेजर्ट। कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट में। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अफ्रीका। तो ये दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अफ्रीका। कौन सा, वाइल्ड एनिमल्स एंड द बर्ड्स। दे आर हंटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर मीट, बोन, स्किन, टस्क एक्सेट्रा। लोग इनको हंट करते हैं, किसी को मीट के लिए, बोन, ये सब इनके होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हंटिंग, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स नाउ आर इंडेंजर्ड। इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स
बहुत सारे क्या उसमें आ गए एंडेंजर्ड में, क्योंकि ह्यूमन बींग इसको मार देते हैं अपने खुद पर्पसेस के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आर टेकिंग स्टेप्स टू कंट्रोल दिस डैमेज। तो अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट उसके जो अलग अलग कंट्रीज, सब कंट्रीज ने मिलकर कुछ मतलब ऐसे चेंजेस किए हैं ताकि लोग इजिली हंट ना कर सकें। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका। द अमेजन बेसिन इज होम टू अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जो अमेजन बेसिन है वो बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स का वो क्या घर है। मैनी कलरफुल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलती हैं। कैंडोर इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड। रिया इज अ फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, जो उड़ नहीं सकती, इस टाइप का। सम कॉमन एनिमल इंक्लूड मंकी, आउस, स्क्विरल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, ये सब यहाँ पे इजिली देखने को मिलते हैं। एंट ईटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। पूमा एंड जैगुआर आर फेरिशियस एनिमल ऑफ कैट फैमिली विच कैन बी सीन रोमिंग इन अमेजन बेसिन। ये पूमा और जैगुआर तो यहाँ पे बहुत आराम से देखने को मिल जाते हैं अमेजन बेसिन में। ये क्या? लीमा, ये पूमा, ये सब क्या एनिमल्स यहाँ पे बहुत कॉमनली फाइंड मिलते हैं। कहाँ पे? अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट कॉन्डोर्स। ये क्या है? कॉन्डोर्स है। टेपर्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर। टेपर्स हैव few predators and despite of their large size they are strong and agile runners। बहुत तेजी से ये दौड़ते हैं। Ocelots are small cats of yellow or gold with hack spot and strips। They feed on deer, monkey and other small animals। तो ये इसको खाते हैं। The largest snake in the world is anaconda is living in the river and densest forest of South America। अगर हम बात करें एनाकोंडा की तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक है, स्पीशीज है, तो वो भी कहाँ देखने को मिलता है? अमेजन बेसिन में। द लमा इज अ नेटिव टू द साउथ अमेरिका, राइट, तो ये वहाँ के नेटिव हैं। नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका। द वाइल्ड लाइफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका लाइक इट्स हैबिटेट इट इज डाइवर्स एंड इंक्लूड एनिमल्स सच एज। यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलता है हमें। बिशन, ब्राउन बियर्स, ये सब क्या है? दीज आर द मैनी बियर्स, कैरिबो, वोपिंग, कैनस, ये सब क्या है? दीज आर द एनिमल्स विच आर फाउंड इन कॉमनली इन नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। मेनी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स आर मार्सुपिल्स, फॉर एग्जाम्पल कंगारू एंड कोलास। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली फाउंड होने वाले एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, द मदर ऑफ मार्सुपिल कैरी हर यंग वन इन अ पॉकेट ऑफ स्किन कॉल्ड पाउच इन देयर स्टमक। वो अपने जैसे कंगारू रखते हैं उसी फॉर्म में वो अपने बच्चों को रखते हैं। द वॉम्बैट इज अ बोरोइंग मार्सुपियल। द फ्लाइटलेस ईमू इज वाइड स्प्रेड इन ऑस्ट्रेलिया। ईमू जो है वहाँ पे बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं। इट इज द लार्जेस्ट बर्ड एक्सेप्ट फॉर द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के बाद अगर हम बात करते हैं तो ईमू ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द प्लेटिपस इज वन ऑफ द 2 egg like mammals to be found in the world today. The other is Cetidina. Echidnas is the only native Australian mammal found throughout the entire continent। मतलब ये जो एसिडना है ये ऑस्ट्रेलिया के हर एक कॉन्टिनेंट में इजीली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वी हैव द यूरोप। यूरोप ऑफर एन अमेजिंगली डाइवर्स एंड यूनिक रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी कि यूरोप में अलग अलग तरीके के और बहुत अलग टाइप्स के वहाँ पे वाइल्ड लाइफ चीज़ें देखने को मिलती है। द वाइल्डेस्ट एरिया ऑफ यूरोप आर एक्सट्रीम इन क्लाइमेट कंडीशन। मतलब वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है। कहाँ पे? यूरोप में। देयरफॉर दे हैव नॉट बीन इनहैबिटेड बाय ह्यूमन। इसलिए वहाँ पे ह्यूमन का बीइंग का रहना बहुत ज़्यादा टिपिकल है। दस अलाउिंग एनिमल्स टू प्रोस्पर इन सच रीजन। इसीलिए वहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? यूरोप में, राइट। ये सब क्या है? बीवियर, लेनेक्स, माउंट गोट, पोलेकैट, ये सब वहाँ के हैं। फॉर इंस्टेंस इन एक्सट्रीमली कोल्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे, यानी नॉर्वे में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, रेनडियर, पोलर बियर, वॉलरस एंड सी बर्ड्स थ्रिव इन नंबर्स। यानी वहाँ नंबर बहुत ज़्यादा ये घूमते हुए मिलते हैं। इन द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। यहाँ पे क्या ह्यूमन बीइंग है नहीं, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स बहुत आराम से और अच्छे से रहते हैं। अ रेयर एनिमल लाइक लाइनेक्स कैन स्टिल बी फाउंड इन द स्कैंडिनेवियन फॉरेस्ट एंड कोस्ट ऑफ द सदर्न स्पेन। तो स्पेन में वहाँ पे देखने को ये मिलते हैं। बियर्स कैन ऑल बी फाउंड इन अबेंडेंस in most European countries, right? The other commonly found European animal include wild boar, mountain goat, wolf, deer, otter, beavers, bichon and polecats। तो ये सब एनिमल्स वहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? यूरोप में। एशिया की बात करें तो एशिया बूस्ट some of the large and thickest forests in the world, right? It is also home to some of the most fascinating wildlife। यानी कि बहुत सारे जानवर वहाँ देखने को मिलते हैं। कैमल, बंगाल टाइगर, डियर, चीतल, नीलगाय, ये सब क्या है? These are the most important wildlife that are found in India, right? And Asia also.
वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया की, इंडिया हैज़ अ रिच एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ, यानी इंडिया में बहुत टाइप के हमें वाइल्ड लाइफ देखने को, जानवर, उसमें पेड़ पौधे प्लस जो बर्ड्स देखने को मिलती है इंडिया में बहुत सारी। वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंट एनिमल्स दैट आर बेसिकली फाउंड इन इंडिया इटसेल्फ। A variety of deer, antelopes, monkeys, langur, jackal, wolves are found in foothills of region, मतलब foothills जो हिमालय है वहाँ पे देखने को मिलता है। The lion is largely found in गिर फॉरेस्ट, और जो लायन की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, वो गिर फॉरेस्ट में। टाइगर्स आर फाउंड इन सुंदरबन, और टाइगर कहाँ, सुंदरबन, जहाँ पे हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की फॉर्म में और बांग्लादेश में ये मिलता है। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ इंडिया हैव बीन बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज, आज की डेट में बहुत सारी बर्ड्स हैं जो एंडेंजर्ड के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि लोग उनको मार देते हैं या फिर पॉल्यूशन की वजह से उनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है और उनके एरिया भी कम हो रहे हैं। द गौर इज फाउंड इन द पेनिनसुला रीजन एंड छोटा नागपुर प्लेटू, गौर जो है ये कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू और पेनिनसुला रीजन में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। द लार्ज स्केल पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, पोचिंग मतलब होता है एनिमल्स को मारना, अब वो पर्पस होता है किसी की स्किन को हम उसके स्किन के लिए मारते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्किन, फर, आइवरी, हॉर्न एंड अदर बॉडी पार्ट्स बाय मैन इन अ सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ मेनी एनिमल एंड बर्ड। तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जो इलीगल तरीके से जो मारते हैं जानवरों को, किस उनके स्किन के लिए, फर के लिए, ठीक है, उसका यूज़ कोई प्रोडक्ट बनाने में, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, इसलिए उनको मारा जाता है। तो उसकी वजह से जो एनिमल्स और जो स्पीशीज हैं दे कम अंडर द एंडेंजर्ड स्पीशीज। This also disturb the food chain in which these animals occurs, resulting in undesirable consequences of the whole ecosystem। और इससे क्या होता है, जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होता है। क्यों? सपोज दैट कि एक फूड चेन जो होता है एक से दूसरा तीसरा लिंक्ड होता है। अब मान ली ह्यूमन बीइंग ने अगर इसे ही खत्म कर दिया तो फूड चेन सारा खराब हो जाएगा। तो इट की वजह से क्या होता है, जो फूड चेन है वो खराब हो रहा है, किसका, इकोसिस्टम का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है, सो दैट वी कैन मेंटेन अ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होगा तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, और जब डिस्टर्बेंस होगा क्रिएट तो कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। एंड टू प्रिजर्व द जेन पूल, यानी कि जो एक जनरेशन में होता है या जो पूल होता है, मतलब जो एक सर्कल है चल रहा है वो, अगर उसको डिस्टर्ब करे, अगर उसमें से कुछ एक भी अगर चला जाएगा, हट जाएगा, तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा पूरा सिस्टम। Some of the measures taken for the conservation of wildlife are given below। तो कुछ measures लिए गए हैं, राइट, आइए देखते हैं। Laws should be made to impose a total ban on poaching of animal, मतलब लॉज ऐसे बनाए गए हैं जिससे जो पोचिंग है, यानी कि जो एनिमल्स को मारते हैं उनके स्किन किसी भी चीज़ के लिए, वो टोटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। नेक्स्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड शुड बी प्रिजर्व बाय एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो यहाँ पे क्या है, जो नेचुरल जो हैबिटेट है किसका, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, उसे हम क्या करना है, प्रिजर्व करना है। कैसे प्रिजर्व करेंगे, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को बना के। पीरियोडिक सर्वे शुड बी कंडक्टेड इन ऑल फॉरेस्ट टू हैव नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड। हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम क्या सर्वेज करना चाहिए कि भाई उस जगह पे पहले कितने एनिमल्स थे, पहले कितने प्लांट्स थे, और अब कितने एनिमल्स वहाँ पे, कितने बर्ड्स वहाँ पे हैं, ठीक। तो इससे पता चलता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन ऑफ अनदर। यहाँ पे क्या है, स्पेशल अटेंशन देनी है किस चीज़ के लिए, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, हमें पता चल गया कि इनकी जो पॉपुलेशन वो कम हो रही है, तो उसको हम प्रिजर्व करें, सिक्योर करें, सेव करें, चाहे वो एनिमल हो या फिर बर्ड हो। द अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फ्यूल वुड शुड बी कर्ब्ड इमीडिएटली। जो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट कभी बोलती है कि आपको इतने पेड़ों को काटना है, बट कई बार होता है कि जो लोग होते हैं वो अनऑथराइज तरीके से, गलत तरीके से बहुत सारे पेड़ों को काटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। दिस डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स। इससे क्या होता है, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है, जो एनिमल्स का है या जो बर्ड्स का जो जगह होता है, उनका खुद का जगह होता है। सपोज एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई एनिमल स्पेसिफिकली रह रहा है, वहीं का नेचुरल हैबिटेट है, बट उसको जब साफ कर दे तो वो खत्म ही हो गया वहाँ से। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करता है कौन, हमारा नेचर। नाउ क्लास वी हैव द एक्सरसाइजेस पार्ट। आइए देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो पहले हमारे पास क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो उसमें है फर्स्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड टू डैश ग्रुप। कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। डैश फॉरेस्ट आर फाउंड इन हेविली रेन एंड अबंडेंट सनशाइन। कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा, तो कौन सा होगा उसका, हमारा आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 3rd 4th 5th ये सब आपका क्या है, ये आपके होमवर्क है, ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वी हैव द fill in the blanks, राइट। आइए देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द fill in the blanks। फर्स्ट, ट्रॉपिकल deciduous forest आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल
मॉनसून फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। द बार्क ऑफ सम ट्रीज इज यूज इन मेडिसिन एंड डाइस। बाकी रेस्ट जो है वो आपको खुद ट्राई करने हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव द ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, फॉरेस्ट लैंड शुड नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। यस, ट्रू। ये अगर हमने इसको भी अगर यूज कर लिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ईमू इज फ्लाइटेस्ट बर्ड विच इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका। तो देखो यहां तक तो ठीक है, वो फ्लाइटेस्ट बर्ड, बट ये गलत है, अफ्रीका नहीं ऑस्ट्रेलिया में वो मिलता है। बाकी 3 जो है वो आपके होमवर्क है, अब उसको खुद ट्राई करोगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, thank you so much for watching this video. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Bye bye and take care.